السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور آپ لوگ کی دعا سے آپ کی یہ بہن بھی ٹھیک ہے۔ اور ہماری ویڈیو کاٹ کے نہیں دیکھنا، پوری بنے رہنا ہمارے ساتھ، فل ویڈیو دیکھنا، ہماری پوری ویڈیو فل واچ کے ساتھ دیکھنا تو سمجھ میں آئے گی۔ اور آج ہم آپ لوگوں کے لے کر آئے ہیں بہت اچھی سی ایک بیان، بہت اچھا بیان ہے، جس کو سنو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ اور شاید اگر میری ویڈیو 50 لوگ دیکھیں گے اور اگر اس میں سے 5 لوگ کے بھی سمجھ میں آ گئی تو میری محنت سفل ہو جائے گی۔ اور میرا ماننا ایسا ہے، مجھے زیادہ نہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں تک دین اسلام کی باتیں پہنچاتی ہوں۔ شاید آپ لوگوں کو کوئی بھی میری بات اچھی لگے، اس پر کوئی عمل ایک لوگ کر لے گا تو مجھے اس کا ثواب ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اگر میری بات آپ لوگوں کو کہیں پر بھی غلط لگے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دینا، انشاءاللہ آگے سے میں سدھار لوں گی۔ اور فل واچ کے ساتھ ہماری ویڈیو دیکھنا، اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھتے ہو پلیز یہ بھی کمنٹ میں بتانا۔ تو چلیے حمد و ثنا کر لیتے ہیں، اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے پوری ویڈیو میں۔ تو چلیے سناتے ہیں، غور کرنا ہماری بات پر۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، ہم اس کے قرض دار ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، ہم اس کے قرض دار ہیں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس کی عبادت کے لیے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو اس کی عبادت کے لیے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ غور کرنا ہماری بات پر، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیشہ ہمیں یہی رہنا ہے، ایک دن یہاں سے جانا ہے، مرنا ہے اور اپنے گھر میں جانا ہے، اپنے اصلی گھر میں جانا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا محل بنا لے، کتنے بڑی قیمتی گھر خرید لے، لیکن اسے ایک دن مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے۔ غور کرنا ہمارے بات پر اور میری ویڈیو فل دیکھنا آپ لوگ۔ کوئی کتنے بھی قیمتی کپڑے پہن لے، لیکن اسے ایک دن کفن کو ضرور پہننا ہے، کفن پہن کے اور وہ اپنے گھر کو چلا جائے گا۔ تو کبھی بھی تکبر کے ساتھ اس زمین پر نہ رہنا، کبھی بھی تکبر کے ساتھ اس زمین پر نہ رہنا میرے بھائی اور بہنوں۔ غور کرنا ہماری بات پر، اس دنیا میں رہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کی عبادت میں ٹائم دیں اور اس کی نہ کریں۔ کوئی آج انسان کو اللہ جتنا شکر کرتا ہے، اللہ کتنا بھی نواز دے، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔ اس نے کچھ نوازا ہی نہیں ہے، نہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دینے والا کی انسان کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بوڑھا انسان تھا، آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتے ہیں، غور کرنا۔ ایک بوڑھا انسان تھا، ایک ہوٹل پر کام کیا کرتا تھا، تو اس ہوٹل کا جو مالک تھا وہ عیسائی تھا۔ اس ہوٹل کا جو مالک تھا وہ عیسائی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ایک پوتا تھا، بہت ہی بیٹا بیمار رہا کرتا تھا، تو اس کو کام کرنا ہوتا تھا کیونکہ اس کا بیٹا کام نہیں کر پاتا تھا، بیمار رہتا تھا۔ آخری ٹائم تھا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے ہوٹل پہ اسی کے ہوٹل پہ تھا، جو ہوٹل کا اونر تھا، وہ آ کر اس کے سہارا دینے لگا کہ جو اپنے گھر چلے، جو تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ہمیں بڑا افسوس ہے۔ اس نے کہا صاحب افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے افسوس کرنے کی، اللہ نے دیا تھا، اسی کی امانت تھی اور اس نے لے لیا، تو اب کوئی امانت ہم کو دے رکھنا ہے، اس کے لیے ہمارا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ اللہ کی امانت ہے۔ بوڑھا آدمی، وہ جو جس دکان میں وہ کام کرتا تھا، وہ مالک جو تھا وہ اس کا ہاتھ بٹانے لگا اور کہنے لگا ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا لڑکا ختم ہو گیا،
तो बूढ़ा आदमी क्या कहता, अफसोस करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले लिया। अभी अगर कोई चीज़ हमको कोई चीज़ दे रखने के लिए, रुपया पैसा जेवर कुछ भी अगर कोई इंसान दे जाए और कहे कि फला दिन हमको वापस कर देना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, उसको वापस कर देंगे कि फला इंसान का सामान है, ये उसको वापस दे दे, क्योंकि भाई ये उसकी अमानत है। तो इसी तरह हम सब अल्लाह की अमानत है और अल्लाह के घर हमें लौट कर जाना है। यहाँ दुनिया में हमें नहीं रहना, हमें मरना है और मर कर अल्लाह के घर जाना है। तो चलिए आगे हम सुनाते हैं। वो बूढ़ा आदमी अपने घर गया और अपने लड़के को कफन वफन दे के फिर से वापस आ गया। तो उसके बाद क्या होता है आप लोग सुनिएगा। वही होटल में वो रहने लगा, उसी में काम करता था। एक दिन फिर खबर मिली कि अपने शहर के गम में बीबी, अपने शोहर के गम में बीबी भी इंतकाल कर गई। उस लड़के की जो बीबी थी, वो जो बूढ़ा आदमी उस होटल में काम करता था, जो उसका लड़का इंतकाल कर गया था। तो 2-4 दिन के बाद फिर खबर मिलती है कि अपने शोहर के गम में आपकी बहू भी इंतकाल कर गई है। गौर करना हमारी बात पे। इस बूढ़े इंसान की बहू भी इंतकाल कर गई, इसके बेटे की बीबी। तो ये बूढ़ा इंसान इस ऑनर के पास गया, इसी के पास, आज मेरी बहू की डेथ हो गई है, मेरी बहू का इंतकाल हो गया है, आप इजाज़त दें तो मैं कफन दफन देने के लिए गांव चला जाऊं। उसने कहा इसमें इजाज़त की क्या बात है, और फिर मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बहू का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी बहू का इंतकाल हो गया है। बूढ़ा इंसान था, वो वापस घर पे आया, बहू का कफन दफन किया। उधर वो ऑनर, उसकी बीवी दोनों गाड़ी से उसके गांव पहुँचे, बीवी दोनों गाड़ी से पहुँचे, उसके घर पहुँच के उसके पास गए। इसने इंसान के कंधे पर उसने ऑनर ने हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो जाना ही था और हमें भी बहुत अफसोस है, और अफसोस ना करें और बस अपनी ज़िंदगी चैन से जिएं, इनका गम ना करें। बूढ़ा इंसान खड़ा हो गया और कह रहा कि मुझे कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है मुझे, ना साथ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। आपसे पहले भी मैंने कहा था और फिर कहता हूँ कि उसका मामला, वो जो चाहेगा उसी की अमानत थी, उसने ले ली, इसमें कोई हमारा इख्तियार नहीं है। आपको फिक्र, गम के साथ नहीं हूँ, आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मुझे गम है, मुझे कोई गम नहीं। और बूढ़ा आदमी अपने मालिक से कहता है कि मुझे कोई गम नहीं है। हैरत ज़्यादा इसी की है कि क्या कहता है, जवान बेटा इंतकाल कर गया, उसकी बहू भी इंतकाल कर गई, उसके चेहरे पर कोई गम नहीं। मतलब वो मालिक सोचता है कि जवान बेटा भी इंतकाल कर गया और इसकी जवान बहू भी इंतकाल कर गई, फिर भी इस बूढ़े इंसान के चेहरे पर कोई मतलब शिकस्त नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई गम ही नहीं है। वो बूढ़ा इंसान अपने मालिक से कहने लगा कि आप वापस लौट जाइए और मैं 8 दिन के अंदर वापस आ रहा हूँ। तो आगे सुनिए। और फिर काम करता होटल पे, ठीक है। 3-4 दिन के बाद वो बूढ़ा इंसान फिर वापस काम करता रहा। आपकी पोस्ट को भी साथ में लाया था, पोते को भी साथ में लाया था, अकेला रह गया था ना पोता, बाकी तो बहू और बेटे इंतकाल कर गए थे। पोता भी बड़े प्यार से रहता था। ऑनर की बीबी कहती है ना, मैं जब अपनी खिड़की से देखा करती थी ना, 3 मंजिल से उसका क्वार्टर बना हुआ था, कभी वो जानवरों की तरह बनकर जानवर चलते ना, पाँव अपने पोते अपनी पीठ पर बैठा कर चलता था। वो बूढ़ा आदमी, मतलब उसकी मालकिन क्या कहती कि मैं कभी खिड़की से झांकती थी तो बूढ़ा आदमी कभी घोड़ा बनता था, अपने पोते को खिलाता था, कभी बकरी बन के अपने पोते को खिलाता था। इसी तरह वो अपने पोते की परवरिश करने लगा। अपने पोते को बूढ़ा इंसान माँ बाप की कमी नहीं होने देता था। एक दिन इस बूढ़े इंसान का पोता खेल रहा था खिड़की पर, तो वो खिड़की से नीचे ही गिर गया। जब वो खिड़की से नीचे गिर गया तो बहुत से उसको चोटें आई और बहुत खून बहने लगा। आगे गौर करिएगा, पूरा जिस्म खून से तरबतर हो गया। तो वो औरत कहती कि मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इसकी मालकिन जो थी बूढ़े आदमी की, वो कहती कि मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, उनके बाद उसको एम्बुलेंस अस्पताल ले गई। अस्पताल तो
अस्पताल ले गई एम्बुलेंस, और अस्पताल में जाकर पता क्या चलता है, जब एम्बुलेंस उसके पोते को अस्पताल लेके गई, उसकी मालकिन कहती है कि मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो जब एम्बुलेंस आई तो उसके पोते को जब लेकर गई तो वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए और उसके पोते का भी इंतकाल हो गया। गौर करिएगा, पहले इसका लड़के का इंतकाल हो गया, फिर लड़के के गम में लड़के की बीबी यानी इस बूढ़े की बहू का इंतकाल हो गया। और जब इसने अपने पोते को लेकर आया तो एक दिन वो खिड़की पर खेल रहा था, अचानक से खिड़की से गिरा तो वो बेहोश हो गया। फिर उसकी मालकिन ने फ़ोन किया तो वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाया एम्बुलेंस वाला लेकर, और उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो आगे सुनिए बूढ़ा आदमी क्या कहता है। एक दिन होटल के मालिक ने पूछा बूढ़े आदमी से, ये होटल का मालिक देखता था कि वो जैसे पहले थे वैसे अब हैं, उनके चेहरे पर कोई गम नहीं है। तो एक दिन बूढ़े आदमी से पूछने लगा कि तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया, जवान बहू इंतकाल कर गई और तुम्हारा पोता भी इंतकाल कर गया, और तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, तुम्हें याद नहीं आती क्या अपने बहू और पोते बेटे की। तो बूढ़ा आदमी क्या कहता है, बूढ़ा आदमी कहता है याद करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, और मुझे तो प्यार है अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे तो अपने अल्लाह पर फ़क्र है, उसकी अमानत थी, उसने ले लिया। मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है, और जब मैं मर के जाऊँगा तब मैं अल्लाह से फरियाद करूँगा, अल्लाह के वहाँ जाकर मैं अपने पोते से, अपने बहू से, अपने बेटे से मुलाकात करूँगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता लगाकर। फिर बूढ़ा आदमी क्या कहता है, बूढ़ा आदमी कहता है ईमान की पुख्ती है, अलग अलग हमने ईमान पर वक्त फरमाए। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से उसने बहुत दुआएं की और कहा कि हमें क्या, अपने मालिक से कहने लगा कि हमें क्या अफसोस करने की ज़रूरत है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया। और आज अगर हमें कोई चीज़ कोई देता है तो अगर हम उसको रख लेते हैं, 2-4 महीने अगर हमने रख लिया तो पता हम क्या सोचेंगे, अरे ये उसको क्यों दे, ये अब हमारी हो गई। नहीं, जब अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला की हम सब अमानत हैं, एक दिन हम सबको लौट कर जाना है। तो इसी तरह अगर कोई चीज़ आपको अमानत के तौर पर देता है कि आप इसको रख लो और हमको फला दिन फला महीने में लौटा देना, तो ए मेरी बहनों, है मेरे भाइयों, उस चीज़ को उसी तरह उसे लौटा कर दे दो जिस तरह वो आकर आपको लौटा रखने के लिए दिया था। तो मेरा भी यही मानना है कि हम सब अल्लाह की अमानत हैं और अल्लाह के घर में लौट कर जाना है। जैसे कि उस बूढ़े आदमी ने, बहू भी उसकी चली गई, बेटा भी जवान ख़त्म हो गया, उसका पोता भी ख़त्म हो गया, लेकिन उस अल्लाह से उसने उम्मीद ना छोड़ी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। तो मेरा भी यही कहना है आप लोगों से कि अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के वहाँ हम सबको लौट कर जाना है, और इतनी छोटी छोटी बात के लिए अपना ईमान ख़राब मत करना और हमेशा ईमान पर कायम रहना, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहना। तो चलिए, इतनी बड़ी वीडियो है मेरी और ये बयान इतना ही बड़ा था। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर कहने में कोई गलती होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।